You're live. Good evening, everyone. And on behalf of Translumina and Helping Heart Foundation, it's my privilege to welcome you to this evening. I think last couple of months have been quite disturbing, and the issue is also that we are not sure how long it's going to last. It's been a challenging time for everyone. It's been challenging time for the society. It's been challenging time for the healthcare workers, doctors, nurses, paramedical staff, and it has also been a challenging times for companies like us, which are in the business of life-saving devices, because not only do we need to uh, save our own company, our staff, our workers, but at the same time, we also need to ensure that in addition to the diseases and in addition to the pandemic stress which is caused, there are a lot of diseases, the cardiac diseases, which are still prevalent, and we ensure that every patient gets the equipments, every patient gets the products and the healthcare delivery from the system. And but at the same time, as they say, every adversity brings out the best in you. So we are absolutely hopeful that maybe a couple of months from now we will all emerge much stronger, um, much better, and with a lot of new ideas. And with this positivity, I think we have to live each of this day. Little about Helping Heart Foundation. Helping Heart Foundation is a trust which is created and run by Mrs. Jyoti Sinha from Lucknow, and she has been doing quite a lot of activities in terms of providing cardiac treatments to underprivileged patients who cannot afford it otherwise, and whether it comes to organizing heart camps, giving a free consultations, advisors, and organizing for the funds to organize for emergency services, emergency surgeries of young patients, kids, old patients. And I think they have done a wonderful job. And we are very proud to be associated with them for this event. This event was also created that Mrs. Jyoti Sinha, in addition to uh, working for and creating this Helping Heart Foundation, is an excellent poet. She has had a very checkered career. She was being invited by a few of the best live shows in the world. She has broadcasted at BBC UK, and she's also been invited in US for her poetry. Though sometimes they say that if you want the art to really create life, one should avoid making a professional out of it. And this is what she has done. She has remained amateur. She never charges for all her poetry. She down, and rather at certain point in time she has also paid for these events where she's done not only her poetry but also involved budding poets to come to these platforms and recite whatever creations they have. Also, in addition to it, she runs within the in addition to the Helping Heart, uh, she runs a charity where they also help the artists, especially which are in these challenging times, do not have the infrastructure to either perform because of all the restrictions. At the same time, it is difficult for them to maintain their livelihoods for the simple fact that these people only earn out of their performances. So whatever charity she creates by her poetry, she donates it on one hand to the Helping Heart Foundation, and also whereas the artist in her, just to keep it alive, she's helping all the budding artists and the artists which are dependent on their remuneration to love their livelihoods. And for both these causes, it's been an honor for us to be associated with her. Um, a couple of you who have been probably listening to her for the first time, she has been, I mean, in terms of the Hindi poetry, she has written a couple of books. Probably she'll just mention about it when I pass it on to her. And these books have been appreciated. Again, I must say that none of this book, as she has written, for any commercial gains. So we are very proud that we are associated. Today's evening was organized also with an objective to be. I think music is one of the best therapy wherever the source become very aggressive. So
we thought that it will act like a very cool balm of all the stress which we are going through. And through this act, if we can also help some people, then it's icing on the cake. At the same time, I must also talk about Mrs. Indra Naik. She's been a classical artist. Mrs. Jyoti Sinha will talk about the masters through her. She was trained, and now she represents a fusion between classical and Sufi, and creates. It's unfortunate that we could not create an occasion like in Delhi or somewhere where all of us could have heard her live, but we thought that whatever little we could create in this YouTube platform, I think you are going to enjoy these performances. So today evening is going to be a combination of poetry and soulful music. And without much ado, not taking away any time of yours, I'll pass on to Mrs. Jyoti Sinha to take the evening from here. And before I do so, I think I'll again give my sincere thanks to her for agreeing to come today and be a part of this program and giving Translumina an opportunity to be whatever little we could do for the extreme charity which she conducts over several years in the past. Mrs. Jyoti Sinha, please. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Gurmeet ji, Punita ji, and entire Translumina team for inviting us and supporting us, helping us for this noble cause in this, pathetic pandemic period. आज जहाँ पे जिस दुखद परिस्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, उसमें एक छोटी हम सबकी तरफ से समाज के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप सब ने इनिशिएटिव लिया. आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर सपोर्ट. और मैं सारे लोग जो आज मुझे देख सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सबको मैं आदाब पेश करती हूँ, वेलकम करती हूँ और दिल की गहराइयों से. आप सब दिल के आई थिंक ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, तो आप सब तो दिल की धड़कन सुनते हैं, दिल की बात समझते हैं. मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से इस खूबसूरत शाम के लिए बहुत बहुत एहतराम के साथ खैर मकदम करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और you must be taking all the precautions, all the proper measurement to stay away from this cruel corona. आप सब सुरक्षित रहें, इसी में समझदारी है. दोस्तों, अजीब सा समय है, वक्त भी बहुत अजीब सी शय है दोस्तों, बड़े अजीब अजीब रंग दिखाता है, कभी बढ़कर गले लगाता है तो कभी कतरा के निकल जाता है. इन दिनों जो वक्त ने हमें मंजर दिखाए हैं, हमारे मासूम ख्वाबों को हमारे मासूम ख्वाबों में जो खंजर चलाए हैं, सोचने में लगता है कि क्या खफा थी, क्या खता थी, क्यों खफा हो गई जिंदगी, क्या खता थी हमारी, क्यों खफा हो गई जिंदगी, क्यों इसने इतने नश्तर चलाए हैं. मगर क्या कर सकते हैं, क्या कभी सोचा था हमने कि गुफ्तगू रूप हो ना पाएगी. अभी हमको आपसे मिलाने के लिए कमबख्त वेबिनार आएगा पर चलिए कोई बात नहीं, हमको कहा गया कि दिस इज न्यू नॉर्मल और ऐसे ही अब होना है. तो चलिए, नया दौर है, नई सोच, नई पहल होना चाहिए. ये एक बहुत इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी द एंटायर वर्ल्ड इज कोलैप्स and kneel down in front of this tiny virus. Invisible हमारा एक एनिमी था जिसने पूरी दुनिया को स्विच ऑफ मोड पे ले आए. एंड वो सब देश, तथाकथित देश जो कि they were supposed to be very rich and developed countries थे, वो भी इस छोटे से इनविजिबल दुश्मन के आगे घुटने टेक कर खड़े हो गए. और इस दुश्मन ने हमको सिर्फ हमको बीमार ही नहीं किया, हमें जैसे कहते हैं ना कि तन मन धन से हमको धरायशी कर दिया. बहुत कठिन परिस्थितियां हुई, इकोनॉमी डाउन हुई, आप सब जानते हैं, और लोगों के बिजनेस बंद हुए, नौकरियां गई. और भारत में तो मजदूरों का जो कड़ी धूप का दर्दीला सफर था,
वो तो हम सब ने देखा, बहुत ही दिल दहलाने वाला मंजर था। क्या कर सकते थे, सबने अपने दिल खोल के सबने मदद की। सरकार जितना कर सकती थी, इतनी बड़ी जनसंख्या को जितना भी कर सकती सरकारों ने किया, हम सब ने किया। और हमारी हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन इज devoted towards the holistic health of the society, not only the physical but mental health, social, emotional health, and even the spiritual health of the society. And मुझे लगता है कि through art, culture, music, poetry, dance, we can spread the positivity and एक happiness का माहौल रखने से भी आधी बीमारी डॉक्टर्स कहते हैं कि वो डिप्रेशन से और मन की होती है, तो क्यों ना हम अपने मन को खुश करने के लिए, अपने से दुख को दूर करने के लिए हम म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, संगीत, डांस का एक हम सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, आज किसी तरह की हमने एक छोटी सी पहल की है, नूरे गजल एक हमने शाम सजाई है आप सबके लिए। आप सब जो अपने अपने घरों में हैं, घरों में रह के मनोरंजन करिए। और हमारे आज की इस नूरे गजल जिसमें सूफी संगीत का जो एक रूहानी जादू है, उसको बिखराने के लिए हमारे बीच मुंबई से जुड़ रही हैं श्रीमती इंदिरा नायक जी, जो बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, देश के सारे आई थिंक फेस्टिवल्स में इन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं, पर ये विदेशों में भी बहुत इनवाइट की जाती हैं। पिछले साल शी वाज इन अमेरिका फॉर 3 months and she had several programs over there in Chicago and California. So many. I'm so happy that she is here with us. She's really good in her singing. मैं मेरे बहुत साथ मेरी पोइट्री को भी उन्होंने कई बार अपनी खूबसूरत आवाज दी है। तो दोस्तों, चलिए भूल कर हर गम हम लुत्फ उठाते हैं। हम जिंदा हैं तो जिंदगी का जश्न मनाते हैं। माना कि बादल गम के छाए हैं, माना कि बादल गम के छाए हैं और हम जिंदगी के सताए हैं, मगर जनाब हर ठोकर सिखाती है फिर से चलना संभल कर। हर ठोकर सिखाती है फिर से चलना संभल कर। हमारे साथ हमारे हौसलों के साए हैं। इंदिरा जी, मैं आपको दावते सुखन देती हूँ। मेरी और आपकी मलमली, ये जो मखमली आवाज है, वो शायद कुछ माहौल बना सके। ओवर टू इंदिरा जी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साए तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साए तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो। राह पे कांटे बिखरे मगर उस पे तो फिर भी चलना ही है।
ढलना ही है, सुधरे ढल जाएगी, क्या बजे हिम्मत रंग लाएगी, फिर सुबह आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये यार कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साल तो क्या, तन्हाई ये दिल तो क्या। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है, वाह। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। आवाज थोड़ी तेज कर लीजिए इंदिरा जी, वॉल्यूम तेज कर। आवाज तेज कर। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है, जो मुश्किल से चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है, वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, तो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। बहुत सुंदर इंदिरा जी, बहुत सुंदर। आप देखिए, पहली बार ये हम लोग एक नए टेक्निकल उसमें आए हैं और हम लोग ने ये संगीत का कार्यक्रम दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ लोग लुत्फ उठा रहे होंगे। थोड़ा वॉल्यूम की शायद हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आप थोड़ा और लाउड करें। इंदिरा जी, आपने इतनी खूबसूरत शुरुआत करी, इतनी खूबसूरत मैसेज के साथ कि बस हौसलों की धूप चाहिए
और ये इस इसके लिए बदलते मैंने बॉलीवुड के 2 गाने लिए। अभी हम जी 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 कबीर जी की तरफ मुड़ते हैं, जो मेरा पॉपुलर गाना है मन लागो मेरो यार फकीरी में। जी ये मैंने एक बॉलीवुड फिल्म में गाया है और कंपोज किया है। साथ में मेरे अमर संगम दास है गिटार पर और समर खान तबले पर। जी ये एक्चुअली बोले हम मास्क पहन के गाए बजाए, बोला नहीं नहीं आज तो अलाउड है थोड़ा, तो हमने पूरी थोड़ा संभाल के लाउड हमने किया है। लाउड कर और कबीर जी कहते हैं एक्चुअली जो भी हमको ईश्वर ने दिया है उसका ही है और उसके पास ही जाने वाला है। तो हम जो इतना ईगो लेके जीते हैं उसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सबूरी और पेशेंस और श्रद्धा ही हमको आगे इस जो जंजाल है या जो इस तकलीफ से है हमको मुक्त करेगी। तो बिल्कुल। पेशे खिदमत मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरा कुछ भी नहीं जो है सब है तेरा। तेरा तुझको तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे मेरा 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। वाह वाह मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिरी
कहत कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु साहिब मिले साहिब मिले साहिब मिले सबूरी में यार फकीरी में यार फकीरी में यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में यार फकीरी यार फकीरी यार फकीरी यार फकीरी यार फकीरी में 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 यार फकीरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। मन लागा मेरा यार फकीरी में। बिल्कुल आपने कबीर के इतनी खूबसूरत जो उनकी बंदिश थी उस अपने सुर में ढालकर एक बड़ा फकीराना सा एक माहौल बना दिया। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ इस पर्टिकुलर इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ इस गाने के। मैं कबीर के दर्शन से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनसे बहुत राब्ता रखती हूँ। देखिए कितनी छोटी छोटी सी बात पे उन्होंने ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद ही शीतल होए, आपहु शीतल होए। ये छोटी छोटी बातें जी उन्होंने हमें सिखा गए हैं। या कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दुश्मनी ना काहू से बैर। मैंने भी एक दो दोहे उनसे प्रेरित होकर लिखे हैं। मैं आज के समय के हिसाब से कहती हूँ कि समय बड़ा बलवान,
समय बड़ा बलवान है, सुन इसकी ललकार। समय बड़ा बलवान है, सुन इसकी ललकार। पीर पैगंबर भी हारे, इसके पीर पैगंबर भी झुके, मांग इसके आगे माने इसके आगे हार। और एक जैसे एक दोहा मुझे याद आ रहा है आज आपकी ये सुन के, कि सूर्य भेद बरते नहीं, सूर्य भेद बरते नहीं, घर घर धूप समाए। सूर्य भेद बरते नहीं, घर घर धूप समाए। जाति पाति सब छोड़ के मनुष्य धर्म अपनाए। तो ये जो फकीर होते हैं वो उनके लिए इंसानियत और एक मानवता का धर्म बहुत बड़ा होता है। मैं एक और फकीर की बात करती हूँ। आपने कभी गौर किया, आपने कभी रात में अंबर के आंगन में एक फकीर को फिरते देखा है? सिर फिरा मस्त मौला, एक फकीर जो तारों की टोकरी उठाए, तारों को अपनी झोली में भर करके फिरता रहता है। आपने कभी सोचा कि क्या करता है? ये चांद आवारागर्दी क्या करता है? अगर आपने नहीं सोचा तो चलिए एक शायर की नजर से देखें। मैं आपको बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। झोली में भर कर के तारे, चांद भटकता है दर दर। निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। झोली में भर कर के तारे, चांद भटकता है दर दर। और जिसको चाहे शोहरत दे दे, जिसको चाहे रुसवाई, जिसको चाहे शोहरत दे दे, जिसको चाहे रुसवाई। खेल अजब ही रोज दिखाता, ऊपर बैठा जादूगर। खेल अजब ही रोज दिखाता, ऊपर बैठा जादूगर। और ये 2-3 शेर हैं जो मैं चाहूंगी कि इसमें आप तवज्जो दें। मैं कहती हूँ कि खुद ही बनाए और मिटाए, खुद ही बनाए और मिटाए, रोज खिलौने माटी के। ऊपर वाला कर क्या रहा है? खुद ही बनाए और मिटाए, रोज खिलौने माटी के। जाने कब आसूदा होगा, अपने हुनर से उजागर। आसूदा, आसूदा का अर्थ होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। और पूजागर जो मिट्टी के घड़े बनाता है, जो शिल्पकार होता है। मैं कहती हूँ कि खुद ही बनाए और मिटाए, रोज खिलौने माटी के। जाने कब आसूदा होगा, अपने हुनर से पूजागर। स्टॉप मेकिंग ह्यूमन बीइंग गॉड। रोज बनाता है, रोज मिटाता है, पर अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया, हम ही बना के। और अब वो तो बाजीगर है, अब उसकी बाजीगरी जो है उसके सामने मेरा एक शेर सुनिए। मैं कहती हूँ कि जीत उसी की, हार उसी की, जीत उसी की, हार उसी की, दोनों तरफ से चाल उसी की। जीत उसी की, हार उसी की, दोनों तरफ से चाल उसी की। कौन मुकाबिल उसके आए, कौन मुकाबिल उसके आए, सबसे बड़ा वो बाजीगर। कौन मुकाबिल उसके आए, सबसे बड़ा वो बाजीगर। उस बाजीगर के बारे में, उस खुदा के बारे में, वो ऊपर बैठा है। एक मेरा जो हासिल शेर है इस गजल का, शायद मैंने ऊपर वाले ने ही लिखवाया है मुझसे। मैं उस शेर को पढ़ने के पहले, जो लोग गजल के को पसंद तो करते पर शायद गजल के बारे में बहुत नहीं जानते, मैं उसका एक एजुकेट करना चाहूंगी आपको। जो गजल होती है उसमें शेर होते हैं 2 पंक्तियों के, जो 2 लाइनों में जो बात होती है वो एक बंदिशों के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक 2 लाइनों के एक शेर में पूरी बात कह दी होती है। और गजल बहुत सारे ऐसे शेरों का अशार का एक पूरा एक संग्रहण होता है जिसे कहते हैं। तो जो पहली गजल का जो पहला शेर होता है जिसे हम मतला कहते हैं, बहुत से लोग जानते हैं पर फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रही हूँ। मैं माफ करती हूँ, माफ करना चाहिए मुझे जिनको पता है, मैं पर अनजान लोगों को बोल रही हूँ कि जो पहला गजल का पहला मिसरा होता है उसके हम मतला कहते हैं। और जो आखिरी शेर होता है जिसमें अक्सर शायर अपना तखल्लुस भी डालता है, उसको हम मक्ता कहते हैं। तो पूरी गजल
मतले से शुरू होती है और मकते में खत्म होती है। अब जनाब, मेरा ये जो शेर मैंने इस गजल के पहले शेर में लिखा कि निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर, झोली में भर कर के तारे, चांद भटकता है दर दर। और ये इसका शेर कि मतले में आगाज जिंदगी, मतला यानी पहला शेर, मतले में आगाज जिंदगी और मक्ते में मौत लिखी, मतले में आगाज जिंदगी और मक्ते में मौत लिखी, सांस सांस एक गजल गजल का मिसरा लिखता रहता वो शायर, सांस सांस एक गजल का मिसरा लिखता रहता वो शायर। यानी हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो सांसें, हमारी जिंदगी है, वो मतले में शुरू होती है, मतले में खत्म होती। एक शायरी है उसकी लिखी हुई, एक गजल है उसकी लिखी हुई। तो इस गजल का को खूबसूरत बनाइए, इस गजल को गुनगुनाइए। जिंदगी आपकी गजल है, उसे गुनगुनाइए। और मैं तो गा नहीं सकती हूँ, तो इंद्रा जी को ये गजल बहुत पसंद आई थी, तो वो अपनी मधुर आवाज में आपको ये गजल सुनाएंगे। ओवर टू इंद्रा जी। शुक्रिया ज्योति जी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज रिमार्क दीजिएगा, और कोई शेर पसंद आता है, कोई बातें आपको क्या अच्छा लग रहा है इस टेक्नोलॉजी में, आप लोग खुद बता सकते हैं, हमें रिमार्क दे सकते हैं, तो बहुत इनायत हो जी। गुरमीत ओवर जी, टू इंद्रा जी। ट्रांसलूमी माँ की टीम को थैंक यू बोलना है, और हेल्पिंग हार्ट्स को भी फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। तेज और करिए बोलिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेती बात करने में, गाना गाऊंगी। थैंक यू गुरमीत जी एंड पुनीता जी। ये बहुत ही अच्छा शेर लिखा है ज्योति जी। मैं 2-3 मिसरे लूंगी बिकॉज आपने पूरा गा लिया है, आपकी दूसरी भी तो चीजें गानी है। बस हाल में कंपोज किया है इसको। निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर, निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर, निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर, झोली में भर भर के तारे, चांद भटकता है दर दर, निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। जिसको चाहे शोहरत दे दे, जिसको चाहे रुसवाई, जिसको चाहे शोहरत दे दे, जिसको चाहे रुसवाई, जब की रोज दिखाता ऊपर बैठा जादूगर, खेल अजब ही रोज दिखाता ऊपर बैठा जादूगर, खेल अजब ही रोज दिखाता ऊपर बैठा जादूगर।
कौन मुकाबिल उसके आए, सबसे बड़ा वो बाजीगर। कौन मुकाबिल उसके आए, सबसे बड़ा वो बाजीगर। कौन मुकाबिल उसके आए, सबसे बड़ा वो बाजीगर। निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। मतले में आवाज़ जिंदगी, मतले में आवाज़ जिंदगी, मक्ते में है मौत लिखे। मक्ते में आवाज़ जिंदगी, मतले में है मौत लिखे। मतले में आवाज़ जिंदगी और मक्ते में है मौत लिखे। हर एक सांस गज़ल का मिसरा लिखता रहता वो शायर। हर एक सांस गज़ल का मिसरा लिखता रहता वो शायर। हर एक सांस गज़ल का मिसरा लिखता रहता वो शायर। निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। निकला करता है रातों में ख्वाब बेचने सौदागर। ख्वाब बेचने सौदागर। ख्वाब बेचने बहुत सुंदर इंदिरा जी। चलिए, बहुत खूबसूरत आपने इसके साथ शायद बड़ा न्याय किया इस गाने के साथ, इस गजल के साथ, वरना तो पड़ी रहती डायरी में। और चलिए हम अगर अगले सफर में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जी, बहुत एक और कठिन है प्यारी मगर हम बंदी, उसकी पॉपुलर बंदी शायद राम। छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के। बहुत ही पॉपुलर है। हम वक्त के लिए बहुत जरूरी है कि हम काफी चीजें पेश करें। मिट्टी के दीवड़ों तुम सुनियो हमारी बात। आज पिया पिया आज पिया घर आएंगे, तुम जलियो जलियो, तुम जलियो सारी रात, तुम जलियो सारी रात।
नैना मिलाई के सेना जलाई के, सेना यानी ईगो। एक बार आपने ऊपर वाले से इश्क लड़ा दिया तो आपको ईगो भी तो मिटाना पड़ता है, तभी जाके हम ऊपर वाले से जुड़ सकते हैं। ये इश्क में हो या ऊपर वाले के प्रेम में हो। पेशे खिदमत अमीर खुसरो का कलाम। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सेना जलाई के, नैना मिलाई के सेना जलाई के, बात अधम कहली मुझसे। छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सेना चलाई के, बात अधम कहली मुझसे नैना मिलाई के, बात अधम कहली मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम फटिका, प्रेम फटिका मदवा मिलाई के, प्रेम फटिका मदवा प्रेम फटिका मदवा मिलाई के, प्रेम फटिका मदवा मिलाई के, मतवारी 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 करती मुझसे नाम नहीं, मतवारी करती मुझसे नाम नहीं। बल बल
बन जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा अपनी सो रंग दी मुसीबा मिलेगी अपनी सो रंग दी मुसीबा मिलेगी
खुसरो रे जाम के बल बल जइए बल बल बहुत सुंदर। सब छीनी मुझसे नाम नैना मिलेगी नैना मिलेगी नैना मिलेगी नैना मिलेगी नैना मिलेगी नैना मिलेगी सब चीज़ मुझसे ना मिलेगी ना मिलेगी ना मिलेगी ना मिलेगी बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर। इंदिरा जी, आपने तो बिल्कुल जो है ना कि अपनी गायकी से वो जो इश्क के मजाजी से इश्क के हकीकी तक हमको पहुंचा दिया। इश्क के मजाजी यानी इस दुनिया का जो प्यार होता है, और इश्क के हकीकी यानी ऊपर वाले से हम जो मोहब्बत करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। मुझे लग रहा है सब लोग लुत्फ उठा रहे होंगे। ये बहुत पॉपुलर सूफी बंदिशें हैं जो सब पसंद करते हैं। ये तो एक ऊपर तक पहुंचने की जो डगर है वो सच में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और ये जो इश्क है, गालिब साहब भी कह गए हैं कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो साहब गालिब साहब थे। मैंने भी इश्क की राह का एक कैसे मैं गुजर करूं उस इश्क की राह का, मैंने वो भी कुछ सोचा है। मैं कहती हूँ कि राह में इश्क के ऐसे गुजरो, राह में इश्क की ऐसे गुजरो कि डूब के तुझ में तुझसे ही उबरो। राह में इश्क की ऐसे गुजरो कि डूब के तुझ में तुझसे ही उबरो। पीकर दर्द की काली स्याही, पीकर दर्द की काली स्याही, नूर तेरी आंखों से चख लो, नूर तेरा आंखों से चख लो। ये नज्म इंदिरा जी की आवाज में ज्यादा अच्छी लगेगी मुझे लगता है। इंदिरा जी, आप इसको कंपोज करें। शुक्रिया ज्योति जी। राह में इश्क की ऐसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझसे ही उबरूं। राह में इश्क के ऐसे गुजरूं, राह में इश्क के ऐसे
गुजरूं डूब के तुझ में, तुझसे ही उभरूं, पी कर दर्द की काली स्याही, पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चख लूं, पी कर दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चख लूं। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, तेरा मुझसे क्या रिश्ता है, जिस्मो जान में तू बसता है, जिस्मो जान में तू बसता है, फिक्र में मेरी तू ही महके, फिक्र में मेरी तू ही महके, काश मैं तेरी खुशबू छूलूं, फिक्र में मेरी तू ही महके, काश मैं तेरी खुशबू छूलूं। खोल दूं तुझ में अपनी सांसें, खोल दूं तुझ में अपनी सांसें, तेरा मंजर मेरी आँखें, तेरा मंजर मेरी आँखें, तू मेरे एहसास का दर्पण, तू मेरे एहसास का दर्पण, आँख से मैं तेरे खुद को ढालूं, आँख से मैं तेरे खुद को ढूंढूं। जर जर होती जर जर होती जिसकी चाल, रूह हो जाती पल में बेघर, जर जर होती जिसकी चाल, रूह हो जाती
रूह हो जाती पल में बेघर, खत्म न हो शाम, खत्म न हो शायद गम उम्र की, खत्म हो शायद उम्र गमों की, तुझ में मरकर तुझसे ही उबरूं, तुझ पे मरकर तुझसे ही जन्मों, राह में इश्क के कैसे गुजरूं, राह में इश्क के कैसे गुजरूं, डूब के तुझ में तुझ ही से उबरूं, बहुत दर्द की काली स्याही, दर्द की काली स्याही, नूर तेरा आँखों से चकरूं, नूर तेरा आँखों से चकरूं, नूर तेरा आँखों से चकरूं। शुक्रिया 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 इंद्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपने ज्योति जी इसको। मेरे पास तो लफ्ज थे, आपने अपनी गायकी से उसमें नूर भर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपने तो कुछ हमारी जो आज की महफिल के जो मयार है वो वहां पहुंचा दी, और हमारे एहसास को मुझे लगता है आज वहां पहुंचा दिया कि ले गई कुछ इतना ऊंचा सोच की गहराइयां, ले गई कुछ इतना ऊंचा सोच की गहराइयां कि उंगलियां छूने लगी उस नूर की परछाइयां, ले गई कुछ इतना ऊंचा सोच की गहराइयां कि उंगलियां छूने लगी उस नूर की परछाइयां। तो दोस्तों, अब हमारा कार्यक्रम आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है। मैं आप सबसे जाते जाते बस ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में हमें जो भी मिला है, मेरे हिसाब से जिंदगी खुदा की नेमत है, जिंदगी खुदा की नेमत है, फिर भी इंसान को शिकायत है। जिंदगी खुदा की नेमत है, फिर भी इंसान को शिकायत है। गम अता है तो करम उसका, गम अता हो तो है करम उसका, और एक खुशी तो बड़ी इनायत है। तो हमें चाहे खुशी मिले चाहे गम मिले, हमें समभाव से दोनों को स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। हमें जो भी उसने दिया है, ईश्वर पे अगर आस्था हो, अपने पे भरोसा हो, और हमारे पास हौसलों की धूप हो, तो हम अंधेरों में भी मंजिलें ढूंढ लेंगे। चाहे कितना भी खिजा का मौसम हो, हमारे ख्वाबों के जो फूल हैं वो खिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी इल्तिजा है कि अपने, ठीक है गम आते रहते, ये इम्तिहान है जिंदगी की, ऊपर वाला हमसे बीच बीच में इम्तिहान लेता रहता है। तो अपने ख्वाबों के परिंदों को छोड़ दीजिए, खुले छोड़ दीजिए आशाओं के आकाश में उन्मुक्त उड़ने के लिए। ये ना हो कि आप डर के सहम के बैठ जाएं। हाँ, सावधानी जरूरी है, मगर अपने ख्वाबों के परिंदों को उड़ने दीजिए आसमान में, और जिंदगी का लुत्फ उठाइए। जिंदगी एक गजल है, जिंदगी एक बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत सौगात है खुदा का। आप सब लुत्फ उठाइए। तो इंद्रा जी हमें क्या है पॉजिटिविटी पर है, तो जैसे ज्योति जी और गुरमीत जी की एडवाइस से हमने कुछ बॉलीवुड के गाने लिए, कुछ गजल लिए, कुछ सूफी लिया, ताकि हम आप सबको एक खुश मिजाज गिफ्ट दे सकें, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। तो I've deviated from my ghazal and Sufi, but I think the purpose of having this concert is to create positivity. बहुत ही पॉपुलर गीत है, थोड़ा ले रही हूँ।
बस हौसले उड़ा, परिंदे उड़ाइए ख्वाबों के आप, मेरा पसंदीदा गीत। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल की जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहीं नजर, लगता है अब ये जागे हम, फिक्र जो थी पिछड़ गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। हो अब तो जो भी हो सो, अच्छा बजाया मसनम दास ने, शुक्रिया अमर जी। I hope the audience in Trans-Lumina has liked this concert. बहुत सुंदर, बहुत खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएगी कहाँ, किसने छुआ तो ये हुआ, फिरते बैठे बैठे हम, हुई है कई बातें नहीं जब से ऐसे बैठे हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। हो अब तो जो भी हो सो, 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 जो भी हो सो। बहुत सुंदर। अल्लाह के बंदे, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा जिसने इसको ऐसे लूटा फिर जुड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल गिरता रहा अगर, ये अल्लाह के बंदे हंसने, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसने, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसने, जो भी हो कल फिर आएगा।
पर ही खूब रखने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। कब अपने साथ मिले वक्त अपने साथ मिले दर्द ही तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो कल फिर आए। अल्लाह के बंदे हंस दे। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो कल फिर आए। अल्लाह के बंदे हंस दे। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो कल फिर आए। जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी बहुत हो कल फिर आएगा। जो भी हो जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो कल फिर आएगा। 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अब मन ही नहीं हो रहा है कि आपको हम सुनना बंद करें, पर दोस्तों, टाइम का एक बड़ा वक्त तो हमारे ऊपर एक पहरा लगा के रखता है। तो आज हमारी शायरी का ये सफर, ये संगीत का, सूफी संगीत का ये सफर आज हम अभी यहीं खत्म करते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा, लुत्फ उठाया होगा। आप जरूर अपने रिमार्क्स दीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे पहली बार हमने टेक्निकल उसमें किया था, पर आप लोग को कैसा लगा जरूर बताएंगे। और हम आगे भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे। उम्मीद है पूरे अगले संडे यानी 21 जून को हम कथक के साथ कुछ कविता की जुगलबंदी करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे। हमारा और आपका मोहब्बत का ये सफर अगर ऐसा ही चलता रहा, आप अगर हम साथ रहें, तो जिंदगी की कोई भी जंग हम जीत ही जाएंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ ट्रांसल्यूमना की पूरे टीम की, जिन्होंने आज, और जितने भी यहाँ पे आज हमारे वंडरफुल ऑडियंस थे हमारे बीच में, जिन्होंने हमें सुना, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और हमारी इस मुहिम में हमको प्रोत्साहन दिया। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। टेक्निकल हेल्प के लिए मेरे पीछे से शांतनु और नूपुर ने मुझे एक न्यू नॉर्मल जो ये नई वेबिनार है इसके बारे में सिखाया, ताकि मैं पूरी दुनिया तक आई कैन शेयर माय थॉट्स, आई कैन रीच आउट टू ईच एंड एवरीवन। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ यंग जनरेशन का। और आप सब जरूर बताएं हमको। थैंक यू गुरमीत जी, थैंक यू पुनीता एंड एंटायर टीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगी जाते जाते कि खत्म होगा ही नहीं ये रोशनी का है सफर, हम सब रोशनी के रास्ते में चल रहे हैं। खत्म होगा ही नहीं ये रोशनी का है सफर, हो भली जितने भी लंबी इन अंधेरों की डगर, हम डरते नहीं हैं। हो भली जितनी भी लंबी इन अंधेरों की डगर, तो हम हर एक रात के बाद खूबसूरत सुबह आती है, हम उस सुबह के रास्ते में चल रहे हैं। और फिर मिलेंगे आपसे ऐसी एक खूबसूरत गुनगुनाती शायरी से महकती एक शाम के साथ। अभी इजाजत दें, शबा खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।
मैं ज्योति सिन्हा, आपकी होस्ट, और शायरी आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और जरूर बताएं। थैंक यू, शुक्रिया।